لاہور کی مافیا کا بڑا اور بدنام کردار رحیم یار خان میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ مبینہ مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے تیفی بٹ دبئی سے کراچی آیا تھا، کراچی سے لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں رحیم یار خان میں اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور تیفی بٹ کو سنجر پور بائی پاس پر سفید اور سیاہ کرولا میں سوار افراد نے حملہ کر کے فرار کروا لیا۔ پولیس نے پیچھا کیا تو مبینہ مقابلہ ہوا جس میں تیفی بٹ ہلاک، جبکہ اسے چھڑوانے کے لیے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، تیفی بٹ کی لاش ٹی ایچ کیو اسپتال صادق آباد منتقل کر دی گئی ہے۔ حملے کے دوران سی سی ڈی کی سرکاری گاڑی کا ڈرائیور نور علی زخمی ہوا۔ تھانہ کوٹ سبزل میں ڈی ایس پی سید حسین حیدر کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا۔ لاہور کی مافیا کا بڑا اور بدنام کردار رحیم یار خان میں اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اہم خبر ہے، خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ تیفی بٹ دبئی سے کراچی آیا، کراچی سے لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ پولیس کا یہ متن ہے، رحیم یار خان 60 سے زائد افراد کی سرکاری گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ۔ پولیس تیفی بٹ کو سی سی ڈی حراست میں 2 گاڑیوں میں مبینہ طور پر اغوا فرار کروایا گیا۔ ملزمان تیفی بٹ کو سڑک پر رون چک 32 NA پر لے گئے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عاصم صدیق نے۔ عاصم بتائیے گا۔ امیر بلاچ قتل کا مرکزی ملزم تیفی بٹ رحیم یار خان میں پولیس مقابلے میں قتل ہو گیا۔ یہ آج رات یہ پولیس مقابلہ ہوا۔ یہ واقعہ رحیم یار خان سندھ پنجاب بارڈر پر سنجر پور کے قریب واقعہ پیش آیا، جب سی سی ڈی کے ڈی ایس پی سید حسین حیدر انسپیکٹر عبدالحادی کے ہمراہ تیفی بٹ کو لاہور منتقل کیا جا رہا تھا تو سنجر پور بائی پاس پر سرکاری گاڑی جس کے ذریعے جی پی سی 236 گاڑی کا نمبر ہے، اس کے ذریعے ان کو وہاں پہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ 2 گاڑیاں جس میں سفید کرولا اور سیاہ کرولا تھی، ان کی طرف سے فائرنگ کی گئی۔ 7 سے 8 افراد کو نے وہاں پر فائرنگ کی۔ اس فائرنگ کے نتیجے میں جو وہ سرکاری گاڑی چلا رہا تھا ڈرائیور نور علی، وہ زخمی ہے، اس کا دایاں بازو وہاں پر گولی لگی۔ ڈاکو تیفی بٹ کو فرار کامیاب ہو گئے، چک 32 NP کی طرف لے کر گئے اور وہاں پر 15 پر کال کی گئی، اور 15 پر جب کال کی گئی تو پولیس وہاں پر پہنچی، اس کا تیفی بٹ کا پیچھا کیا گیا۔ جو زیر حراست ملزم تھے جنہوں نے اس کو فرار کرایا تھا، ان کا پیچھا کیا گیا، فائرنگ کی گئی اور مبینہ طور پر اپنی ہی ساتھی کی فائرنگ سے تیفی بٹ ہلاک ہو گیا، اور ڈاکو جو ہے جو اس کو حراست کے فرار کرنے کے لیے آئے تھے افراد، وہ پولیس کے اس مقابلے میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس مبینہ مقابلے میں جو حملہ کیا گیا، ایک ڈرائیور نور علی جو سی سی ڈی کا جو وہ سرکاری گاڑی چلا رہا تھا، وہ زخمی ہوا ہے۔ تیفی بٹ کو پہلے ٹی ایچ کیو ہاسپٹل صادق آباد منتقل کیا گیا، اب اس کو شیخ زاد ہاسپٹل منتقل کر دے گا۔ مبینہ طور پر یہاں پر اس کا پوسٹ مارٹم کیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا پولیس مقابلہ ہوا ہے جو سی سی ڈی کی جانب سے کیا۔ ابھی تک سی سی ڈی کی جانب سے مقدمہ درج نہیں کیا گیا، مگر جو پولیس حراست سے فرار ہوا ہے وہ ڈی ایس پی سی سی ڈی سید حسین حیدر کی مدعیت میں تھانہ کوٹ سبزل میں درج کیا گیا۔ یہ مقدمہ نمبر 226/25 ہے، جس میں اس کی حراست کا کیا گیا۔ 15 پر کال کی گئی، پولیس وہاں پر پہنچی، وہاں پر ان کا مبینہ طور پر ان کا پیچھا کیا گیا۔ پولیس نے جب فائرنگ کی تو اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے تیفی بٹ ہلاک ہو گیا، جبکہ جو اس کے ساتھی ہیں وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جی شکریہ عاصم صدیق، ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں تیفی بٹ کو سنجر پاس پر سفید اور سیاہ کرولا میں سوار افراد نے حملہ کر کے فرار کروا لیا۔ پولیس نے پیچھا کیا تو مبینہ مقابلہ ہوا جس میں تیفی بٹ ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے چھڑانے والے ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تیفی بٹ کی لاش ٹی ایچ کیو صادق آباد منتقل کر دی گئی ہے۔ حملے کے دوران سی سی ڈی کی سرکاری گاڑی کا ڈرائیور نور علی زخمی ہوا۔ تھانہ کوٹ سبزل میں ڈی ایس پی سید حسین حیدر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں، لاہور کی مافیا کا بڑا اور بدنام کردار رحیم یار خان میں اپنے اختتام کو پہنچا۔ خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ مبینہ مقابلے میں ہلاک۔ پولیس ذرائع کا بتانا ہے تیفی بٹ دبئی سے کراچی آیا اور کراچی سے لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ راستے میں رحیم یار خان پہ اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا اور تیفی بٹ کو سنجر پور بائی پاس پر سفید اور سیاہ کرولا میں سوار افراد نے حملہ کر کے فرار کروا لیا۔
खबर है जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मजमूई तौर पर मुतासिर होने वाले 4 अहम शाहराहों में से मोटरवे समेत बहावलपुर लोधरा परमिट रोड एक माह बाद ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है, जबकि मुतासरा मोटरवे और गिलानी बाईपास के मुतासरा हिस्सों की तामीर के लिए पंजाब हाईवे और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से तेजी से काम जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वकास सदीकी से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से 4 अहम शाहराएं जो है मुतासिर हुई थी। सैलाबी पानी उतरने के बाद 2 अहम शाहराएं भावलपुर रोड और परमट रोड जो है मुकम्मल तौर पर तमाम ट्रैफिक के लिए बहाल हो चुका है। एक माह गुजरने के बाद जुज़वी तौर पर मोटरवे का शेरशाह से जलालपुर पीरवाला तक का हिस्सा भी जो है बहाल कर दिया गया है। आगे की जानिब जो मोटरवे का हिस्सा है वो ताहाल मुतासिर है। इस पर NHO काम की जानिब से बड़ी तेजी के साथ जो है काम जारी है। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं उस जानिब भारी मशीनरी की मदद से जो है वो मुतासरा हिस्सों को जो है तामीर किया जा रहा है। उस पर बड़ी तेजी के साथ उसकी बहाली का जो काम है वो जारी है। इस वक्त गिलानी बाईपास की सूरत की अगर हम बात करें तो इस वक्त भारी पत्थर की मदद से भारी मट्टी जो है यहाँ पर डालकर जो है और शिगाफ को पुर किया जा रहा है, जिसको सैलाबी पानी का रुख मोड़ने के लिए जो है शिगाफ डाला गया था। इस वक्त भारी मशीनरी यहाँ पर भी पंजाब हाईवे की मौजूद है और इस साइड पर अगर हम दिखाएं तो मट्टी और पत्थर जो है इस साइड पर डाले जा रहे हैं ताकि ये शिगाफ पुर और ये सड़क जो है बहाल हो। आप मैं बता चलो कि गुज़िश्ता एक माह से जो है जलालपुर पीरवाला का जो इस साइड का जो सखर अहमदपुर सरकिया उस शरीफ का जो जमीनी रास्ता है बराह रास्त वो मुनक़ता हो चुका था और इन सड़कों की बहाली जो है अब नागुज़ीर हो चुकी है और इस वक्त जो है तेजी से इन सड़कों की बहाली पर जो है काम जारी है। जी शुक्रिया वकास, अपडेट करने के लिए। दरिया सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बतदरीज कम हो रही है। गंडा सिंह फिरोजपुर में भी पानी की सतह वाज़ेह तौर पर कम हो गई है। पानी का खराज सिर्फ 38,000 क्यूसिक रह गया। मजीद जानते हैं, महमूद ज़हीर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद, बताइएगा। दरिया सतलुज के नज़दीक रहने वाले लोगों के लिए कोई अच्छी खबर भी है, वो यही है कि आज जो खराज है वो तकरीबन 38 से 39,000 क्यूसिक रह गया है फिरोजपुर यानी कि भारत से। उसके बाद हेड सुलेमान की हेड इस्लाम से मैलसी साइफन से होता हुआ जो पानी बहावलपुर के इस ब्रिज तक आता है, जो साथ ही एम्प्रेस ब्रिज है और ये पक्का पुल है, यहाँ तक आता है। यहाँ पर अगर कैमरामैन आप मुझे दिखा सकें या आपको नजर आ रहा हो तो पानी की सतह बहुत नीचे हो गई है। बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती चली जा रही है। 3.25 लाख से भी ज़्यादा, तकरीबन 3.5 लाख से भी ज़्यादा क्यूसिक पानी था फिरोजपुर से जिस वक्त सैलाबी सूरत हाल थी और अब सिर्फ 38,000 या 39-40 हज़ार पे तकरीबन क्यूसेक पे पानी चल रहा है और वो पहुंचता हुआ यहाँ पे भी तकरीबन 41,000 क्यूसेक तक इस वक्त बहावलपुर में भी चल रहा है। तो बहावलपुर के लिए अच्छी खबर ये है शहर के लिए कि ज़ेर ज़मीन जो पानी था उसमें आर्सेनिक आ गया था और काफ़ी हद तक पानी नीचे चला गया था। अब वहाँ भी पानी की सतह बुलंद हो गई है और इसके अलावा जितने भी ये इलाके हैं जहाँ जहाँ से ये सैलाबी पानी गुजरा है वहाँ पर अब फसलात बड़ी शानदार होंगी। तो बहावलपुर में सैलाबी सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती हुई और उसके साथ साथ ये जो पानी है इसकी सतह में बतदरीज कमी होते हुए अच्छी खबर यह है कि बहावलपुर शहर के ज़ेर ज़मीन सतह में पानी में इजाफा हुआ है, बेहतरी हुई है। जो आने वाली आगे इलाकों की फसलें हैं वो शानदार होंगी और इस वक्त फिरोजपुर में तकरीबन 40,000 या 39,000 और बहावलपुर में 41,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। जी शुक्रिया महमूद ज़हीर। लुडन के इलाके गुलाम शाह में सतलुज का सैलाबी रेला तो गुजर गया मगर अपने पीछे तबाही की तवील दास्तान छोड़ गया। ना सिर्फ मकीनों के ख्वाब मलबे तले दब गए बल्कि रिस्क का सामान भी सैलाबी रेलों की नजर हो गया। बरसों की मेहनत पानी में बह गई। बच्चों को क्या खिलाएं, मुतासरा शख्स की दुहाई है। लुडन गुलाम शाह में सतलुज का सैलाबी रेला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। गढ़ों और रेत ने काबिल काश जमीनों को भी बंजर बना दिया। बरसों की मेहनत चंद लम्हात में मिट्टी हो गई। मुतासरीन का यह कहना है सब कुछ बनाते उम्र गुजर गई, सैलाब ने सब कुछ छीन लिया। मुतासरीन का यह कहना था रोजगार खत्म हो गया, अब बच्चों को कहां से खिलाए, मुतासरीन की दुहाई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बिलाल शाकिर से। बिलाल, बताएगा। मैं इस वक्त लुडन के इलाका गुलाम शाह में मौजूद हूं जहां पर सैलाबी रेला जो है वो तो गुजर गया है लेकिन अपने पीछे तबाही की कई दास्तानें छोड़ गया है। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूं। अगर मेरा कैमरामैन इम्तियाज़ रियाज आपको दिखा सके, ये मनाजिर हैं सैलाब गुजर जाने के बाद। यहाँ पर जो मकान थे वो मुकम्मल तौर पर यहाँ गिरे हुए हैं। मुतासरा शख्स जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि कितने मकान गिरे हैं और मजीद कितना नुकसान हुआ। भाई बताइएगा, हमें कमरे नज़र आ रहे हैं गिरे हुए, क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है पिया। मैं गुलाम शाह दा रेशियां पिया। मेरे कमरे दो तो बिल्कुल ही जड़े माल दे बरांडे ते कमरे जड़े बिल्कुल ही खत्म हो गए।
मैं अगे बड़ी मेहनत मजदूरी नाल औखे जे बनाए हैं। कोई ऐसा केड़ा कोई साडे दे कारोबार हैं, कोई दुध दिला बेची, कोई मजदूरी मेहनत दिहाड़ी दप्पा करते बनाए हैं, वो सारे गिर गए। रकबा कुछ जड़ा ना हिस्सा वो बंजर होया पिया, खड्डे वजे पे वो बे तक काबिल ही नहीं है, साधु तो पुरींदे ही नहीं, वो मेहरबानी की जाए तो। बाकी जड़ा है पिया वो सारा रेता चढ़ा पिया है, वो साढ़े किसी काबिल ही नहीं है पिया, ना साढ़े को रेता हटा सकते हैं, ना कोई अगों रोजी का कोई जरिया बना सकते हैं। तो लिहाजा हुकूमत ने अपील की जाती है, मेहरबानी की जाए। ये मुतासरीन जो हैं वो शदीद अजियत से दो चार हैं और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हमारा जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला करें। अगर बैक साइड पे दिखा सकें तो ये इनका जो रकबा है उसमें भी गड़े बन चुके हैं और ये अब नाकाबिले काश्त रकबा जो है वो बन चुका है और हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे रोज़ी का ज़रिया भी ये वाहिद रकबा था जो हम काश्त करके और इसके अलावा दूध जो है वो सेल करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। बाकी जो ये इनके 2-3 मकान जो बाकी रह गए उसकी बुनियादें भी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं। हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि जो भी नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए। जी शुक्रिया बिलाल। जिला बहावलनगर की 3 तहसीलों में सर्वे का काम जारी है। 47 मौजाजात में सर्वे किया जा रहा है। मेंबर सर्वे टीम के मुताबिक सैलाबी पानी के बायस सर्वे टीमों को काम में मुश्किल का सामना है। अकूका, तोगेरा, फरीदनगर समेत कई इलाकों में ताहाल पानी मौजूद है। मजीद तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। पंजाब हुकूमत के हिदायत पर जिला बहावलनगर की 3 तहसीलों में सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे का काम जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नवाई इलाके में, जहाँ पर सर्वे टीम जो है वो अपना काम कर रही है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, इन्हें मुश्किलात से वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो किन मुश्किलात का इन्हें सामना है, लोग जो इनसे तावन करें, कितने फीसद काम मुकम्मल हो चुके, तो बात कर लेते हैं सर्वे टीम के मेंबर से। आप बताइएगा जी, बहुत मुश्किल हालात है, किस तरह आप वहां तक पहुंच रहे हैं? सर हालात तो मुश्किल है, आपके सामने पानी पहले कम था तो हम लोग जाके काम कर रहे थे अपन, लेकिन कल से जो है पानी ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम तो करना है, काम हम कर रहे हैं अपना। बाकी नुकसान लोगों का काफी हुआ है, लोगों के घर तबाह हो गए, फसलें डैमेज हो गई हैं, लेकिन हमारे इलाके के जो काम है अल्लाह का शुक्र है वो 75% मुकम्मल हो गया। बिल्कुल 75% जो है वो काम मुकम्मल हो गया। तो यहाँ पे अहले इलाका भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर। आप बताइएगा जी, किस तरह का जो है सर्वे के लोग जो है वो काम कर रहे हैं और आप लोग इनसे कैसे तावन कर रहे हैं? जी हम इनके साथ पूरा तावन कर रहे हैं। बहावलनगर की तरफ से तकरीबन 5 डिपार्टमेंट हैं जो हमारे साथ तावन कर रहे हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उसके बाद अर्बन यूनिट का है, लाइव स्टॉक है, और भी 2 डिपार्टमेंट में। और यहाँ का जो सिस्टम था ना वो बदहाली का शिकार हो चुका था, लेकिन उम्मीद की किरण जो है ना वो अर्बन यूनिट से हमने लगाई हुई है कि हमारा जो नुकसान हुआ है इन लोगों के सर पे हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बिल्कुल ये थे अहले इलाका भी, जिनका कहना है कि पंजाब हुकूमत से ही हमें उम्मीद है, और इस वक्त जब सर्वे जो है इनसे इन्हें मजीद उम्मीद आई है कि हमें हमारी जो मदद है वो होगी, पंजाब हुकूमत जो हमारा ख्याल करेगी। जो कुछ सैलाब में। जी शुक्रिया कासिम अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग रंगपुर के सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश हैं। शोबा खिदमत खलक की जानिब से सैलाब मुतासरीन में 170 से जायद रोशन बैग तकसीम किए गए। जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल मनान ने कहा, मौसम सरमा की आमद के पेश नज़र 1000 से जायद गर्म बिस्तर भी सैलाब मुतासरीन में तकसीम किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना परवेज अख्तर से। बिल्कुल, रंगपुर में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए निजी तंजीमों के साथ साथ जो सियासी जमातें हैं वो भी पेश हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के शोबा खिदमत खल्क की जानब से जो है वो 170 से ज़्यादा अफराद में राशन बैग तकसीम किए गए हैं। इस हवाले से बात भी करेंगे। मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर अब बताइएगा कि कितने लोगों को जो है राशन बैग तकसीम किया जा रहा है और आइंदा कितने लोगों को जो है वो सहूलियात फराहम की जा रही हैं, क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? इस हवाले से मेरे भाइयों, जब से सैलाब आया है अल्लाह के फजल से जमात उनके साथ खड़ी है। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग ने इसमें कलीदी किरदार अदा किया। अल्लाह के फजल से लोगों को पहले रेस्क्यू किया, फिर उसके बाद उनको खैमाजात में जगह दी, 3 वक्त का खाना दिया, और यहाँ से लेके सियालकोट से लेके अलीपुर और आगे तक सीतपुर तक जहाँ तक पहुँच सके अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात जलालपुर में हर जगह पे खेमे लगा के लोगों को बाइज्जत तरीके से जगह दी और उनको खाना दिया। और इस वक्त पानी जो है वो खुश्क हो गया, लोगों को वो खेमे भी दे दिए और 1-1 माह का खाना जो है ना राशन वो उनको दिया है।
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو راشن بھی اور دیں گے, بستر بھی, اور ساتھ اللہ نے چاہا تو ان کے مکانات کے لیے بھی جو اقدامات ہو سکے ضرور کریں گے. اس کے ساتھ موسم جو ہے نا وہ سرما آنے والا ہے, اس میں لوگوں کو رضائیوں کی ضرورت ہوگی, یہ پریشانیاں جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہوگی, اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ بتائیے گا سر, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی ابھی انشاءاللہ ہم پوری پلاننگ کر رہے ہیں اور 20 سے 25 دن کے بعد اسی گراؤنڈ کے اندر انشاءاللہ 1000 بستر یہاں پہ ہم تقسیم کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل, ان کا یہی کہنا ہے کہ سیلاب متاثرین کی بحالی تک جو ہے ہم یہاں پر موجود ہیں, لوگوں کے جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی. خیمہ بستی یہاں پر لگائی گئی, اس کے ساتھ 170 سے زائد جو افراد ہیں ان میں راشن بیگ جو ہے تقسیم کیا گیا, اور موسم سرما کے حوالے سے جو ہے وہ 1000 سے زائد جو ہے وہ رضائیاں یہاں پر تقسیم بھی کی جائیں گی. جی شکریہ رانا پرویز. ڈی سی خان میں سیلاب کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ, ایک ہفتے میں گندم کی قیمت میں بڑے اضافے سے شہری پریشان ہیں. گندم کی قیمت میں 800 روپے فی من اضافہ, 3000 روپے فی من والی گندم غلہ منڈی میں 3800 روپے فی من میں فروخت. تفصیلات جانیں گے, آشان بخاری نے جوائن کیا ہے. آشان بتائیے گا. جی بڑھتی ہوئی مہنگائی میں اب گندم بھی غریب عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دے رہی ہے. سرکاری ریٹ جو مقرر کیا گیا تھا گندم کا وہ 3000 روپے فی من مقرر کیا گیا تھا, لیکن غلہ منڈی کے اندر پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے 700 سے 800 روپے فی من جو ہے گندم کا ریٹ جو ہے بڑھ چکا ہے. اس کے کیا وجوہات ہیں اسے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ نائب صدر جو ہیں غلہ منڈی کے وہ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. جی بھائی جان بتائیے گا کیا وجوہات ہیں اس طرح سے 700 سے 800 روپے ایک ہفتے کے دوران گندم کے ریٹ بڑھ چکے ہیں, کیا وجوہات ہیں اس کے؟ سر کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی, 1000 روپے سے بھی اوپر تیز ہو چکی ہے گندم. گندم پہلے بک رہی تھی 2200-2300 روپے, اب ہمیں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 3000 روپے میں بیچیں. 3000 روپے میں تو ہمیں ذمہ دار بھی نہیں دے رہے کیونکہ مال مل رہا نہیں ہے اس ٹائم, اور ہمارا بزنس بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے. نہ تو ہمیں مال مل رہا ہے نہ ہی ہم مال بیچ سکتے ہیں. ہماری کوشش یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسی ریٹ پہ مال بیچیں. آپ نے ہمارا ادارہ دیکھا ہوگا, یہاں پہ بزنس بالکل ٹھپ ہو چکا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مال نہیں مل رہا. سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مال اتنی گندم میں تیزی کیوں آئی ہے, یہ ہماری اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا. یا تو اس میں سٹاکی پڑ گئے ہیں یا تو یہ ملک سے گندم بہر جا رہی ہے, کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جی ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ گندم جو ہے سرکاری ریٹ کے اوپر ہی ہم فروخت کریں, لیکن ذمہ دار سے جو گندم ہم خریدتے ہیں وہ اس کے ریٹ جو ہیں کافی بڑھ چکے ہیں, اور جو مارکیٹ کے اندر سے گندم ہے اس کی بھی شارٹیج دکھائی دے رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ غلہ منڈی کے اندر جو ہے آئے روز جو ہے جو گندم کے ریٹ ہیں وہ بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں. جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. لودھرا میں حکومت پنجاب کی گندم زیادہ اگاؤ مہم کے لیے محکمہ زراعت کی کاوشیں جاری ہیں. ڈیپٹی ڈائریکٹر ملک ظفر کی سربراہی میں ٹیمیں مسلسل فیلڈ میں فعال ہیں. 3,76,000 ایکڑ پر رواں سال میں گندم کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے رانا آصف حنیف سے. بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات پر پنجاب بھر میں گندم زیادہ اگاؤ مہم کا آغاز ہو چکا ہے. ضلع لودھرا میں بھی اقدامات لیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت ملک ظفر صاحب, ان سے جانیں گے سر ضلع میں کتنی اراضی ہے جو آپ نے گندم کے لیے اب اس وقت ہدف رکھا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے سر؟ ہاں جی بالکل, پورے پنجاب کی طرح لودھرا میں بھی ہماری جو ٹیم ہے ڈسٹرکٹ کمیٹی گورنمنٹ نے جو اس مقصد کے لیے بنائی ہے اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں. ہم نے اپنی پوری تیاری کر لی ہے, پورا پلان ہمارا مکمل ہے. ہم نے گاؤں تک ذمہ دار کا جو ذمہ دار کے دروازے تک پہنچنا ہے اس کے, کیونکہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جو کاشتکار ہیں, جو گندم لگانے والے کاشتکار ہیں, چھوٹے بڑے ذمہ دار, جو سرکاری زمین ہے اس کو بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, وہ بھی اس کے اوپر بھی ہم گندم کاشت کروائیں گے. 3,76,000 جو ہے ایکڑ کا ٹارگٹ ہمارا گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے, اور ہم پوری مطلب امید ہے, اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ ہم اچیو کر لیں گے, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس پورا پلان موجود ہے. جو 16 اکتوبر سے ہم نے گاؤں جانے کے لیے ٹیمیں بنا دی ہیں, لمبرداروں کو ہم نے آن روڈ کر لیا ہے, نوٹیبل پارلیمنٹیرین کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو گیا ہے. باقاعدہ 16 اکتوبر سے اس کا باقاعدہ افتتاح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم بڑا کنونشن کرنے جا رہے ہیں ضلع لودھرا میں, لمبرداروں کو یہاں بلائیں گے. اس کے بعد پھر ہم تحصیلوں میں یونین کونسل لیول پہ, مرکز لیول پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے. جی بالکل, ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیں گے. 3,76,000 ایکڑ جو ہے وہ ضلع میں اس وقت گندم اگاؤ جو ہے اس کا ہدف مقرر کیا گیا ہے, اور
डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मलिक ज़फ़र जो हैं वो बड़े मुतमईन हैं कि जी शुक्रिया राना आसिफ। गिलगश्त में कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहर पब्लिक टॉयलेट बनाने की तैयारी है। बुनियादें खोद दी गई। स्कूल के सामने पब्लिक टॉयलेट बनाने से चार दीवारी का तखश्शुस पामाल होने का खदशा। टॉयलेट्स के बायस ताफुन से कई मसाइल भी जन्म लेने का खतरा है। वालिदैन सरापाए एहतजाज, इंतजामिया से प्रोजेक्ट रुकवाने का मुतालबा है। आपको बताएं गिलगश्त गर्ल्स स्कूल के बाहर पब्लिक टॉयलेट बनाने की तैयारी है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी। ज़ुहैब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गुलगश्त के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी कम्प्रीहेंसिव स्कूल में जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर एक अनोखा काम जो है वो किया जा रहा है कि यहाँ पर ठीक जो गर्ल्स स्कूल का गेट है, गेट नंबर 2 है गालबन, और उसके बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो है वो पब्लिक टॉयलेट जो है वो बनाया जा रहा है कि जो कि सिर्फ मेल हजरात के लिए होगा, लेकिन उसकी जो बुनियादें हैं वो भी खोदना शुरू हो गई है। मेरा कैमरामैन अगर आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके तो फिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। तमाम तर जो मामलात हैं उसको जो है वो यहाँ पर ठीक कर लिया गया है और उस सूरत में देखा जा सकता है किस तरीके से जो काम है वो यहाँ पर दिन और रात में जो है वो इसको जल्द से जल्द जो है वो मुकम्मल किया गया। और स्कूल की दीवार की अगर हम आपको सूरत जो है वो दिखा सकें तो ये भी देख सकते हैं किस तरीके से दरारें जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हमें जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस काम के बाद जो है वो वालिदैन और ताजे बरादरी में शदीद गम गुस्सा भी जो है वो पाया जाता है। वालिदैन भी कुछ हमारे हमरा मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा ये क्या काम जो है वो किया जा रहा है कि गर्ल्स स्कूल के बाहर जो है वो यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, मेल हजरात के लिए टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, तो कितनी मुश्किलात का सामना होगा बच्चियों के लिए और वालिदैन के लिए? ये सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे पहले रश बहुत ज़्यादा होता है, सड़क बहुत छोटी है। जब यहाँ वाशरूम बनेगा तो रश और बढ़ जाएगा और हमारे बच्चियाँ जो आती जाती हैं उनके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होंगी। और ये भी है कि यहाँ के माहौल की वजह से, पाकिस्तानी माहौल की वजह से, बहुत बड़े माहौल होने की वजह से यहाँ पे कोई भी किसी बच्चे को बहका के अंदर ले जा सकता है, ये भी बहुत बड़ा मसला होगा। और इधर का जब वाशरूम बनेगा तो इसके जो बैग मारेगा सारा अंदर पानी स्कूल बदबू और वो यहाँ पर खड़ा होना बड़ा माहौल हो जाएगा। हाँ, जरासीम फैलेंगे, मच्छर फैलेंगे, इससे बीमारियाँ फैलेंगी, सारी परेशानियाँ बच्चे स्कूल के लिए भी होगी, मार्केट के लिए तो अलग परेशानियाँ हैं ही हैं। और रश जो है पहले बहुत ज़्यादा होता है, फिर और भी बढ़ जाएगा, बजाय सड़क बड़ी करने के वो मज़ीद छोटी करती है। आप क्या कहेंगे ये जो काम किया जा रहा है किसकी जो है वो इमा पर ये काम किया जा रहा है कि एन स्कूल के गेट के साथ जो है वो ये टॉयलेट्स बनाया जा रहा है? ये काम इंतहाई गलत किया जा रहा है। बच्चियाँ हैं, मेरी खुद बच्चियाँ अंदर पढ़ती हैं, इंतहाई गैर मुनासिब हरकत है। गवर्नमेंट अगर बनाना ही है तो आगे पीछे करके बना ले गए। ये जो भाई ने बात की है वाकई मार्केट है, रोड पहले तंग है, बहुत ज़्यादा रश होता है, आना जाना मुसीबत होती है हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन है। तो गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि टॉयलेट बनाए, ठीक है पब्लिक के लिए बनाना, थोड़ा सा आगे पीछे करके बनाना, गेट के साथ ना बनाए। बिल्कुल स्कूल का जो है वो कम से कम ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये फिर गर्ल्स का स्कूल है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो ताजे बरादरी है, वो भी काफ़ी मुश्किलात का शिकार और सरापा एहतजाज भी। आप क्या समझते हैं इस एक्ट को कि यार ये ठीक है यहाँ पर को बनाया जा रहा है? पहले तो अव्वल बात ये कहूँगा कि ये तो इंतहाई गलत चीज़ बना रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं, फैमिलियों वाले हैं, सारे ख़ानदान वाले हैं, उनको खुद समझना चाहिए कि ये चीज़ बुरी है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़कियाँ निकलेंगी, अल्लाह कोई बेकावे में अंदर ले जाए, कोई टेंशन 100 मामला। पेरेंट्स तो डरते हैं। आने वाले माहौल के मुताबिक आजकल का जो सा यहाँ का माहौल है वैसे ही माशाल्लाह सोफिस्टिकेटेड है, कुछ कह नहीं सकते। ये तो गवर्नमेंट गर्ल्स कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल गुलगश्त के बाहर ये टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं, जिस पर न सिर्फ वालिदैन सरापा एहतजाज है, ताजे बरादरी सरापा एहतजाज, और उनकी जानिब से जो है वो शदीद अल्फाज में जो है वो एहतजाज किया जा रहा है कि गर्ल्स स्कूल के बाहर इस तरह के पब्लिक टॉयलेट्स बनाना जो है वो इसको किसी भी हवाले से जो है वो अच्छा अमल नहीं करार दिया जा सकता। और यही अपील जो है वो जिला इंतजामिया से की जा रही है कि फौरी तौर पर इसको रुकवाया जाए, इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ। जी शुक्रिया ज़ुहैब अपडेट करने के लिए। मुल्तान का ईदगाह रोड अरसा 3 साल से बदहाली का शिकार है। रोड की हालत खराब होने से शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। रोड पर बिछाए गए पत्थर शहरियों के लिए हादसे का सबब बन रहे हैं। तफसीलात जानेंगे, सलमान जमीन ने ज्वाइन किया है। सलमान बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त ईदगाह रोड पर तरक्याती काम जो हैं उनको ब्रेक लग चुकी है। एक अरसा दराज से यहाँ पर ठेकेदार की जानिब से
पत्थर तो बिछाए गए, मगर अब वो पत्थर जो हैं वो अब लोगों के लिए वबाले जान बन चुके हैं कि इस पर डली हुई मिट्टी जो है वो बारिश और पानी के बायस बह चुकी है, जिसके बाद अब पत्थर जो है वो निकलना शुरू हो चुके हैं। मगर इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल इस रोड को मुकम्मल नहीं किया गया। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं, उनसे बात करते हैं। 5वां महीना हो गया भाई, ऐसे रोड नहीं बनाए तो 3 साल हो गया, ऐसे रह गए। रोड जो है वो एक अरसा दराज से नहीं बना। मजीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि क्या परेशानी है इस रोड के ना बनने की वजह से? भाईजान काफ़ी ट्रैफिक मसला होता है, स्कूल टाइम में बहुत परेशानी होती है लोगों को, तो ऐसे छोड़ते चले गए हैं, बस बनाया ही नहीं उन्होंने, काफ़ी दिन ही हो रहे हैं। रोड जो है वो नहीं बनाया गया, यहाँ से गुजरने में इंतहाई मुश्किलात का सामना है। सर, क्या कहेंगे कि जब रोड से गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन पत्थरों? टायर पंचर हो जाते हैं, बड़ा नुकसान होता है जी। या रोड खराब है, 3 साल से हुआ है ये। 3 साल से रोड खराब है और रोड खराब होने की वजह से यहाँ से गुजरने वाले अफराद को इंतहाई मुश्किल का सामना और दुश्वारी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि फौरी तौर पर इस रोड को बनाया जाए ताकि यहाँ के मकीन जो हैं वो आसानी से गुजर सकें। जी शुक्रिया सलमान, अपडेट करने के लिए। मुल्तान का ज़करिया टाउन 3 साल से ज़िले इंतजामिया की तवज्जो का मुंतज़िर है। सीवरेज लाइन का काम मुकम्मल होने के बाद रोड को अधूरा छोड़ दिया गया। ताहाल रोड की मुरम्मत और तामीर ना की गई। दुकानदार और रिहायशी शदीद परेशानी का शिकार हैं, जबकि अक्सर गलियों में पानी का जमा रहना मामूल बन गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। के ज़करिया टाउन में सड़कों के मसाइल और सीवरेज के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 3 साल पहले सीवरेज लाइन डाली गई, उसके बाद काम को अधूरा छोड़ दिया गया है। इस वक्त हम ज़करिया टाउन में मौजूद हैं और यहाँ रोड की हालत अबतर हो चुकी है। रिहायशी और दुकानदार काफ़ी परेशान नजर आते हैं। इनसे जानते हैं क्या मसाइल आ रहे हैं और अभी तक क्यों इसकी सीवरेज लाइन नहीं डाली गई, क्या कहती है इंतजामिया? सर 3 साल पहले सीवरेज लाइन डाली थी यहाँ पे, तो हमने काफ़ी तरह एहतजाज भी किया। यहाँ खड़ा हो जाता है, कारोबार जो है ना चलता नहीं है, आते जाते लोगों को जो है ना तंगी होती है, रास्ता जो है ना खराब होता है, पानी यहाँ खड़ा। इंतजामिया ने यहाँ दौरा किया, आप लोगों ने शिकायत की, क्या कहते हैं? हाँ जी की है शिकायत, जो है ना 1 दफ़ा 2 दफ़ा आए हैं, बस देख के चले जाते हैं। लोग भी आते हैं, फोटो भेजते हैं, जो है ना मूवी बना के भेजते हैं, कोई असरात नहीं होता जो है ना हमारा। जी मेहरबानी करें, जब बारिश होती है ना यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है, पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है और जो ना ज़्यादा ये नहीं है, सीवरेज पड़ी हुई है और आगे पीछे से पूरा रोड सही है। बड़ा थोड़ा सा टोटा है, सिर्फ लोग को डालनी है उन्होंने और कुछ भी नहीं, ज़्यादा काम नहीं है। अक्सर जगह ऐसी हैं जहाँ सिर्फ पत्थर डाला हुआ है और वो पत्थर जो है हादसात का बायस भी बन रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पे सीवरेज नाकाम हो चुकी हुई है और उसके साथ साथ रोड की भी हालत अबतर है। खासतौर पर दुकानदार बहुत परेशान नजर आते हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि इंतजामिया ज़करिया टाउन की तरफ भी देखे और यहाँ के मसाइल भी हल करे। जी शुक्रिया शकील, अपडेट करने के लिए। खबर है मुल्तान से। मुल्तान का मोहल्ला कातीमार कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। रोड पर जगह जगह गंदगी के ढेर लगे। सुथरा पंजाब की टीमें कातीमार रोड की सफाई करना भूल गई। मजीद बताएंगे गौहर रहमान शेख। मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं मुल्तान शहर में सुथरा पंजाब मुहिम के तहत सफाई के हवाले से। इस वक्त हम मुल्तान के मोहल्ला कातीमार में मौजूद है, जहाँ पर जगह जगह पर गंदगी के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सीवरेज के हवाले से जो लाइनों की सफाई की गई है, वो भी यहाँ से जो गंद है वो भी नहीं उठाया जा रहा। गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना है, शदीद यहाँ पर ताफुन है। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अहले इलाका, इनसे हम बात करते हैं, इनसे हम पूछते हैं, बताएं इतने बड़े बड़े ढेर लगे हुए, बच्चे भी इसी गंद में से गुजरने पर मजबूर है, बीमारियां फैलने का खदशा है, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? ये अपनी मदद के तहत लोगों ने ढेरियां लगाई हैं और उसके बाद कोई भी नहीं आता। खास तौर कातीमार रोड पे बड़ी देर के बाद गंद को उठाने वाले आते हैं और यहाँ बहुत बीमारियां फैल रही हैं। बच्चे खांसी है, नज़ला, बुखार है और ऐसे हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि यहाँ से फौरन गंद को हटाया जाए। देखिए जी, ये अहले इलाका है, इनका यही कहना है कि सुथरा पंजाब मुहिम के तहत जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़
जो है वो सुथरा पंजाब की टीमों की पजीराई कर रही हैं। वहीं पर कुछ इलाके ऐसे भी दिखाई देते हैं जहां पर सफाई का नामो निशान नहीं दिखाई देता। बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, बच्चे गुजरने वाले यहाँ से जो है वो बीमारियों के शिकार भी हो रहे हैं। उनका यही मुतालबा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान नोटिस लें और मुल्तान के मोहल्ला काती मार्ग को साफ सुथरा पंजाब मुहिम के तहत यहाँ से कूड़ा क्रिकेट को उठाया जाए। जी शुक्रिया गौहर अपडेट करने के लिए। मुल्तान बिहाड़ी रोड के 90 किलोमीटर तवील मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। कमिश्नर आमिर करीम खान की खुसूसी काविशों से हुकूमत पंजाब ने फंड्स फराहम कर दिए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर 10,000 रुपए के फंड्स महकमा हाईवेज को जारी कर दिए गए। फंड्स के इजरा से मंसूबा जून 2026 तक मुकम्मल किया जाएगा। मुल्तान से अपडेट करें, बिहाड़ी रोड के 90 किलोमीटर तवील मंसूबे पर तामीराती काम जारी है। 10,000 रुपए के फंड्स महकमा हाईवेज को जारी किए गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। महर इमरान ने ज्वाइन किया है। महर इमरान बताएगा। बिल्कुल बात करेंगे बिहाड़ी रोड पर सफ़र करने वाले तमाम उन मुसाफिरों को, उन शहरियों को जिनका एक दरीना मसला था और मुल्तान से बिहाड़ी तक जो रोड था वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ख़राब हो चुका हुआ था। उससे भी आगे ये पूरा बिहाड़ी रोड को बनाने के हवाले से हुकूमत की जानिब से काम सुस्त रवि के शिकार था। लेकिन अब ये खुशखबरी मिली है कि 10 अरब रुपए की खतीर रकम जो है वो हुकूमत पंजाब ने हाईवे को ट्रांसफ़र कर दिया है और इस तमाम काविश में कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने बारहा जो है हुकूमत को लेटर्स भी लिखे, उन्हें जो गुजारिशात भी की कि इस रोड पर बहुत ज़्यादा सफरी मुश्किलात हैं शहरियों को और बड़ा अरसा हो गया कि ये रोड टूट फूट का शिकार है। तमाम जो गाड़ियां यहाँ से गुजरती थी वो ख़राब हो रही थी। इस हवाले से दिसंबर 2026 का वक्त दिया गया था इस रोड को मुकम्मल करने के हवाले से, लेकिन अब जैसे ही फंड्स मुंतकिल हो चुके हैं तो अब जून 2026 में ये जो मंसूबा है मुकम्मल हो जाएगा। मेरा कैमरामैन इरफान इस्लाम दिखाए तो ये देखें अभी जो पत्थर हैं वो डाल दिए गए हैं सड़क पे और उसके ऊपर जो बिल्डोज़र और दीगर जो चीज़ें हैं वो इस पे जो है रोड का मटेरियल डाल दिया गया है और इस वक्त जो है रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम है वो जारी है। काफ़ी अरसे से, कई सालों से ये जो टूट फूट का शिकार था ये रोड 90 किलोमीटर मजमूई तौर पर जो है ये सफ़र बनता था बिहाड़ी तक। अब यहाँ सफ़र करने वालों के लिए आसानियाँ होंगी, थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। फंड्स हुकूमत की जानिब से दे दिए गए हैं और इस वक्त सड़क का काम जो है वो जारी है। जी शुक्रिया महर इमरान।